Hello everyone, welcome to the post-campus discussion session of Starters 153. We'll be looking at Division 4 in this post-contest discussion and we'll be solving the first six questions. So let's start with the first one. So the question says that you are given an assignment from your institute. Each assignment has a difficulty value between 1 to 100. Okay? And AI can solve an assignment if and only if the difficulty of the assignment is less than equals to 60. Okay. So your current assignment has difficulty X, and AI is capable of solving. So you have to tell is AI capable of solving an assignment? This one, no. Okay. So current difficulty will be given. You just have to check if your difficulty level is less than equals to 60 or not. If it is less than equals to 60, AI can solve it. Else it cannot. So it is pretty simple, and I think there is no need of explanation. Like we can solve it directly. Okay. Let's see the test cases. The test cases only takes an integer x. I hope my screen is visible properly. So here we'll be taking test cases here first of all, and it will be calling solve function for each test case. And there are no test cases, so we can skip this part. Okay, we can skip this part, and like we can keep test cases as one, and it is taking only one integer x, right? So we will take input here, and we have to check if like x is less than equals to 60, then we have to print a yes. Else we'll be printing a no. That's all I guess. This would give right answer. Yes. So let's move to the next one. The question here says that make arithmetic progression. You are given three positive integers x, y, and z, and one operation you can choose any of these values and change it to an integer of your choice. Okay. And find the minimum number of operations required to make the sequence XYZ an arithmetic progression. Okay. So as we know, for arithmetic progression, this condition is required. And what you can do is you will be given X, Y, and Z. In one operation, you can choose any of these values and change it to any integer. Okay. What do we have to tell? The minimum number of operations required. Let's take this test case. The test is 2, 5, and 8. So this test case is that uh, y minus x is 3 and z minus y is 3. Okay, so they are already in AP. Okay, so what we can do here is like we can see that 7 minus 4 is 3 and 4 minus 3 is 1. Okay, so an operation is in set to 8. So let's see it. So हमको हमको क्या दिया है इसमें हमको तीन नंबर्स दिए हैं ना x y and z right. So let's take this one 7 4 and 1. तो AP में होने के लिए क्या होता है कि 2b इक्वल्स टू a प्लस सी होना चाहिए ना या फिर को ऐसे लिख सकते हैं कि b माइनस a should be equals to c माइनस b राइट. तो हमको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं. तो इफ दिस इज लाइक इन दिस टेस्ट केस अगर यहाँ पे 7 4 1 को कंसिडर करें तो 7 डिफरेंस 4 माइनस 7 इज माइनस 3 and 1 minus 4 is 1 minus 4 is also minus 3. तो ये तो ऑलरेडी AP में है राइट. So why the answer was
1 है। यहाँ पे आंसर 1 क्यों है? 4 plus 4 is 8 and 7 plus 2 is 10. कुछ अलग कर रहा हूँ क्या? Y minus x equal to Z minus Y. So minus 6 equals to Z minus Y. 4 minus 7 equals to 4. 4 minus 7, 2 minus 4 plus 3 minus 4. That is 7, 4, 3 है. Okay. ये 7, 4, 3 है. Sorry. Uh, this first case in the problem is 7, 4, 3. हाँ, तो यहाँ पे C minus B जो है -1 हो जाएगा, राइट? You have to make the differences equal. तो तुम क्या कर सकते हो कि हम्म, अगर तुम इसको 3 बना देते हो, obviously like 7 into 3 will become 4 and 1 3 होगा इसको। अगर इसको 5 बना देते हैं for the test case this is you make it 7 4 and 1। तो ये तो हमेशा ही एक इंटीजर एक ऑपरेशन में हो जाना चाहिए ना? क्या ये एक ऑपरेशन में हमेशा हो जाएगा? यस सर, एक हो रहा एक ऑपरेशन एट मैक्स लगेगा ना इसमें, क्योंकि लाइक यस ए बी सी अगर 3 नंबर्स हैं तो अगर तुमको सी माइनस ए और सी माइनस बी को इक्वेट करना है तो यू कैन ऑलवेज कीप बी इक्वल टू ए प्लस सी, राइट? मतलब ए प्लस सी बाई टू, सॉरी। मतलब बी को तुम हमेशा अगर ए प्लस सी बाई टू के इक्वल बना दो तो ये हो जाना चाहिए, है ना? तो दिस इज सिंपल दैट the answer can be either 1 or 0. It will be 1 in the case जब वो AP में नहीं है और 0 तब होगा जब वो AP में होगा, है ना? I think the explanation is clear. Then sorry it took like much time क्योंकि मैंने पहले से सॉल्व नहीं किया है। तो are there test cases involved here? Test cases are there, so we'll keep the test cases part. Okay, keep test cases. We'll call the solve function here, and then we have 3 numbers, right? X, Y, and Z. X, Y, Z, and then like we can see if 2 into Y is equals to X plus Z, right? X plus Z. That is the condition of AP. Yeah? So, condition of AP. In such condition, we will be printing a 0, right? Else, we will print 1. So this was quite simple. So this was one. So the next one. The question says that in your garden there are exactly R red butterflies, G green butterflies, and B blue butterflies. And there are also exactly R red flowers, G green flowers, and B blue flowers. Okay. And you have to determine whether it is possible for every butterfly to exactly feed on exactly one flower, is that no two butterflies feed on the same flower, and each butterfly feeds on a flower whose color is different from its own color. Okay. Um, okay. Yes. For example, a red butterfly can only feed on green and blue flowers and not red flowers. Okay. So
let me explain you the question here. So, what the question says is that you are given like three numbers R, G, and B. Okay, so there are um, R number of red flowers. Okay, R number of red flowers, G number of green flowers, and P number of blue flowers. Okay, so the question says that if you have like these many flowers and you also have R number of flies. Okay, R number of flies and G number of flies and blue number of flies. So you have to tell that uh, if a fly uh, if a fly can like go on to a flower which is not of its corresponding color. Okay, so a red fly can go to this green and blue, and similarly, green fly can go to red and blue flower, and a blue fly can go to red and green flower. Okay, so you have to tell ki if there is like you have to like pair up the flies in such a manner कि सारी की सारी फ्लाइज एग्जैक्टली एक फ्लावर पे अलॉटेड हो and no fly is allotted to corresponding color. ठीक है, तो this means that कि जो रेड जो रेड फ्लाई होगा है ना, that has to like that has to be on either on blue flower or on green flower, right? There is some I was saying कि जो रेड फ्लाइज हैं अगर उनको मतलब हम दो फ्लावर्स को अलॉट कर सकते हैं ना, मतलब या तो वो ब्लू फ्लावर्स पे जाएंगे या फिर वो ग्रीन फ्लावर्स पे जाएंगे, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि जो रेड फ्लाइज हैं ना, या फिर इसको या तो इसको ऐसे समझ लो कि रेड फ्लाइज कैन बी लेस देन इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लावर्स, द टोटल फ्लावर्स दैट इज बी प्लस जी, मतलब जो टोटल फ्लावर्स अलॉट हो सकते हैं, है ना, एंड रेड इज द नंबर ऑफ फ्लाइज विच आर टू बी अलॉटेड, तो दिस थर्ड हैज टू बी लेस देन इक्वल टू। या फिर वाइसा वर्सा इसको ऐसे समझ सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ फ्लावर जो रेड को दिए जा सकते हैं दैट आर ब्लू ब्लू प्लस ग्रीन, टोटल नंबर ऑफ ब्लू फ्लावर्स प्लस टोटल नंबर ऑफ ग्रीन फ्लावर्स। ठीक है, दीज आर द टोटल मैनी फ्लावर्स विच कैन बी अलॉटेड टू अ रेड फ्लाई, है ना? So this has to be greater than or equal to red one. Like red R is like the number of flies here, and B and G are the number of flowers. So in any of the manner, however you take it, reduces to the same inequality, है ना? So जिस भी intuition से तुमको समझ आए, you can take it that way. So finally, what we will be concluding. So similarly, if we apply this condition for all the three colored flies, or like R, G, and B, so it will seem like ki B plus G is greater than equals to R, and R plus G is greater than equals to B, and and G here, and R plus B is greater than equals to G. ठीक है? So this can be reduced to these three inequality, and you have to take the intersection of all of these, right? For like you have to allot all the flies with this pattern. So you can take intersection of all of them and all of these three conditions, and you will get to your required answer. So you can print a yes if all these conditions are satisfied, else you have to print a no, right? So I hope the problem statement and the solution is clear. So let's see the implementation part. Okay. So implementation is quite simple. You take the test cases input here. So you take the test cases input here, and you'll be calling a solve function. And in the solve function, you are taking three values, R, G, and B. And I have initialized a flag with true here. And if these are the three conditions, if G plus B is greater than equals to R plus G, and R plus B, okay?
So if this condition is satisfied, so you can directly print the yes, and else you have to print a no. There's no need of this flag. Yes. So so we can like submit this. So let's move to the next question. This question says that Alice and Bob are playing a game. Okay. And Alice will give Bob a non-negative integer k and a permutation p. Okay. I hope that you all know what is a permutation. Permutation is an array of length n, which contains all the numbers from 1 to n exactly once. Okay. So Bob's goal is to sort the permutation in ascending order, and to achieve this thing, Bob can do the following operations any number of times. Okay. So he can choose to any two indices I and j such that pi plus pj is less than equals to k, the non-negative integer that is given, and you have to swap pi and pj. So Alice asks you find the minimum value of k for which it is possible for Bob to sort the permutation. Okay. So let's see here. So we are given key. We're given with the thing that we are given with a integer k and and an and an array, right? And a permutation. Sorry. So this is a permutation p. तो अगर ये एक परम्यूटेशन है ना, मतलब ऑब्वियसली इट कैन बी सॉर्टेड और इट कैन नॉट बी. तो इफ इट इज लाइक नॉट सॉर्टेड, राइट, मतलब अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज 1 3 4 5 एंड 2. ठीक है. इफ वी अज्यूम इट लाइक दिस एंड these are the corresponding indices 1 2 3 4 and 5. Okay. So thing is कि हम क्या कर सकते हैं कि हम दो नंबर्स को स्वैप कर सकते हैं ना. तो ऑब्वियसली हम उन नंबर्स में स्वैपिंग करेंगे जो नंबर्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है. व्हाट आई मीन बाय ओरिजिनल पोजीशन इज कि इफ इंडेक्स वन, अगर मैं वन बेस इंडेक्सिंग की बात करूं तो फर्स्ट इंडेक्स पे 1 आना चाहिए, सेकंड इंडेक्स पे 2 आना चाहिए, थर्ड पे 3, फोर्थ पे 4 एंड फिफ्थ पे 5. इन दिस मैनर इट विल बी इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना. अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना है तो दिस विल बी योर असेंडिंग ऑर्डर, राइट. तो तुम इसमें ये देखो कि जो ऑलरेडी अपने इंडेक्स पे प्रेजेंट है, जो ऑलरेडी उसके करेक्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है, देयर इज नो नीड ऑफ लाइक स्वैपिंग इट, है ना. बट जो प्रेजेंट नहीं है, देयर इज अ नीड ऑफ स्वैपिंग इट. तो मूविंग विद दिस इंट्यूशन, if you have to swap any two numbers, right, the question says कि if you have to swap any two numbers and if those numbers are like pi and pj, है ना, if those numbers are like pi and pj, so pi plus pj has to be like less than equals to k, है ना. And you have to tell the minimum value of k. तो अब तुम ये सोचो कि अगर कोई भी एक ऐसा नंबर है ना, माई क्लेम इज कि अगर परम्यूटेशन में कोई भी नंबर है जो कि मतलब इसको ऐसे रखते हैं कि कोई भी अगर नंबर है जिसको अगर तुमको स्वैप करना है एनी हाउ विथ एनी अदर नंबर, है ना, अगर तुमको स्वैप करना है एनी हाउ विथ एनी अदर नंबर, तो दैट मतलब वो दैट मिनिमम के फॉर दैट स्वैपिंग हैज टू बी सम ऑफ दोज नंबर्स, राइट. उन दोनों के सम के, एटलीस्ट उन दोनों के सम के बराबर तो होना चाहिए अगर उन दो नंबर्स को स्वैप करना है. तो मतलब कि उन दोनों में से उन दोनों में से जो भी लाइक इसको ऐसे रख सकते हैं, तुम इसको ऐसे समझो. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो भी रिक्वायर्ड होगा ना यहाँ पे द मिनिमम रिक्वायर्ड के,
that has to be obviously greater than all the elements at least, है ना? मतलब that has to be greater than all the elements present in the array. ये चीज तो होगी ही होगी, क्योंकि we are talking about sum of two numbers, है ना, which are present in the array. अब तुम इसमें ये देखो कि तुमको सम को मिनिमाइज करना है ना? एंड वी कैन प्रूव दिस थिंग इजीली कि इफ यू हैव टू स्वैप, मान लेते हैं कि अगर तुमको इस एरे में, इन दिस एरे, अगर तुमको इफ आई से कि अगर तुमको 1 और 4 को स्वैप करना होता है ना, 1 और 4 को स्वैप करना होता, तो व्हाट यू कैन डू इज कि या तो तुम 1 और 4 को डायरेक्टली स्वैप कर दो, है ना, दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू लाइक द मिनिमम की रिक्वायर्ड इज 5, या फिर तुम 1 और 3 को स्वैप करो और फिर 1 और 4 को स्वैप करो, है ना? पहले 1 को 3 के साथ स्वैप करो एंड देन 1 को 4 के साथ स्वैप करो, तो दैट इज अगेन गोइंग टू कॉस्ट यू लाइक 5, मतलब द मिनिमम के रिक्वायर्ड। कहने का मतलब यहाँ पे इतना सा है कि जिस भी नंबर को तुम मूव करना चाहते हो ना, उस नंबर को तुम अल्टीमेटली मतलब स्वैपिंग टू नंबर्स इज एज गुड एज कि तुम एडजेसेंट वैल्यूज को स्वैप करो एंड अल्टीमेटली किसी भी वैल्यू को कहीं भी मूव कर सकते हो एरे में। ओके, तो यू विल फाइंड दिस थिंग। तो मूविंग विद दिस इंट्यूशन कि हम एडजेसेंट वैल्यूज को स्वैप करके हम ओवरऑल स्वैप कर सकते हैं, तो दिस कम्स आउट टू बी कि जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा एरे में, है ना, अगर हम उसको चूज करते हैं और 1 को चूज करते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम एलिमेंट जिसको स्वैप करना है, जिसको अपनी पोजीशन पे रखना है हमको, ठीक है, दैट थिंग एंड जो हमारा 1 है, अगर हम इन दोनों को ऑपरेट करें तो वी कैन ऑलवेज मूव द मैक्स एलिमेंट टू इट्स करेक्ट पोजीशन, है ना? तो अब जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो तो ऑब्वियसली दे विल बी लाइक स्वैप फॉर द दैट के, जिस के लिए हमने मैक्सिमम एलिमेंट को रखा। मतलब कहने का मतलब ये है, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पे ये जो गिवन एरे थी, ठीक है, मान लेते हैं इसमें इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट जो कि अपनी पोजीशन पे नहीं है, लेट्स से दैट इज सम एलिमेंट, हाँ सम एलिमेंट एक्स, ठीक है। तो लेट्स से कि दिस एक्स इज एनी एलिमेंट जो कि अपनी पोजीशन पे नहीं है, एंड इफ आई हैव टू लाइक मूव दिस टू इट्स करेक्ट पोजीशन, देन व्हाट आई कैन डू, एरे में कहीं ना कहीं 1 तो होगा ही, है ना, एरे में कहीं ना कहीं पे 1 होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं हमेशा ही 1 को यूज करके इसको स्वैप करूंगा। कहने का मतलब ये है कि आई विल डू स्वैपिंग्स ओवर 1 एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स, ठीक है, एंड अल्टीमेटली आई विल लाइक स्वैप दिस वन with this x to its original position. So what this concludes is कि like अगर तुम x को मूव कर पा रहे हो तो its original position with some minimum value k, obviously x से छोटा कुछ भी होगा, है ना, x से छोटा कुछ भी होगा उसको तुम उसी k की वैल्यू के साथ मूव कर पाओगे, राइट? तो मूविंग विद दिस थिंग, इफ यू कैन लाइक सी जितने भी नंबर्स अपनी करेक्ट पोजीशंस पे नहीं है उसमें से जो भी मैक्सिमम है अगर तुम उसको मूव कर पाए, है ना, सो यू कैन कंक्लूड कि हम उस के वैल्यू के साथ वी कैन मूव ऑल दोज एलिमेंट्स जो कि अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, ऑब्वियसली ऑपरेटिंग देम विद 1, राइट? So that is all what you need for solving this question. So what you can do is कि you can take the maximum element जो भी अपनी correct position पे नहीं है, and you can add a 1 to it, है ना, that will be giving you the sum of the max element and you can operate it with 1. So that is going to give you a minimum value of k, ठीक है? So let's see it here, the code part. Yeah. So the code says कि second. The code says we are taking the test cases here and we're calling the solve function again. So solve function में क्या है कि we are taking n is like size sorry, मतलब here it is like the number of the okay,
any size, right? Any size of array, and I'm initializing. I'm taking an array here. So let me replace it with an array. I'm taking a vector here. Would be much easier to understand it with array. You take an array here and I take input here, array का input ले लिया, and then I'm initializing again. Let's move, say I take another array. And I'm equating this array with, ठीक है, इससे होगा ये कि जब मैं इसको सॉर्ट करूंगा, so I will be just getting the order, right? I'll tell you what I'm doing here. I'm sorting this in like a single order. What you can do is like, order the array in this. So let me correct this out. This is like the part of template, ठीक है? And making this easier for you. तो इसमें हम क्या कह रहे हैं? We are doing this कि I have taken another vector, sorry array, है ना? So I have मतलब like made a copy of this. Like I have taken input here and I have made a copy of this and I have sorted it in ascending order. तो वो इसलिए किया है ताकि वी कैन सी कि 1 पे 1 आ रहा है कि 2 पे 2 आ रहा है या नहीं, है ना? टू चेक इंडेक्सिंग। तो व्हाट वी विल डू, वी विल मूव फ्रॉम बैक, है ना? और हम ये चेक कर लेंगे कि इफ वी आई इज नॉट इक्वल्स टू बैक ऑफ आई, दैट दिस मीन्स कि वो एलिमेंट जो कि अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, राइट? So what we can do is कि like we can take the maximum among vec of I and v of I, ठीक है? And plus one would is going to like give me my answer, and in this scenario when we get this answer we can simply break, else we will continue, else the answer will remain 0 if the array is sorted, that is no such index is encountered, ठीक है? So like we can uh, print my answer. Let's move on. So this gives a right answer to the next, moving to the next one. So this question requires a prior knowledge of tree. So if you have a prior knowledge of tree, then only attempt this one. Okay. So this question says कि you are given a tree, okay, and each vertex is it has to be colored with exactly one color out of R, G and B, है ना? रेड ग्रीन एंड ब्लू में से एग्जैक्टली एक कलर तुमको एक वर्टेक्स को देना है, and for a vertex u, score is defined as the sum of distances from u to the closest vertices of the other two colors, okay? And this is a thing, and then you have to take the distance between two vertices is this, the distance is defined as this, and the beauty of tree is calculated as the sum of score for all the vertices, ठीक है? So let's see the question here. तो क्वेश्चन में हमको एक ट्री दिया है, ठीक है? अब ट्री में ये है कि लेट्स अज्यूम कि दिस इज आवर ट्री, ठीक है? मान लेते हैं ये हमारा एक ट्री है। तो द क्वेश्चन सेज कि हमको इसके हर वर्टेक्स में एक कलर रखना है, आइदर यू कैन कीप रेड और ग्रीन और ब्लू, ठीक है? आइदर यू कैन कीप रेड ग्रीन और ब्लू। तो अब तुम ये देखो इसमें कि एंड यू हैव टू कैलकुलेट द ब्यूटी इज डिफाइंड एज कि मान लेते हैं कि तुमने इसको रेड कलर किया और इसको भी रेड कलर किया, ठीक है? एंड देन मान लेते हैं कि इसको तुमने ग्रीन कलर किया
एंड इस वाले वर्टेक्स को तुमने एक सेकेंड, एक सेकेंड, लाइक देर इज सम लैग आई गेस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, आई डोंट नो व्हाई इट इज लाइक देयर इज अ लैग, आई डोंट नो. हाँ, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू एनी हाउ. तो व्हाट आई वाज सेइंग कि लेट्स अज्यूम कि तुमको ये एक ट्री गिवन है, ठीक है. तो तुमको मतलब हर हर नोड को कम से कम एक कलर तो देना ही देना है. एंड देयर शुड बी नो नोड विद एनी कलर लेफ्ट. मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कलर ना हो जो किसी भी नोड को ना मिला हो, ठीक है. तो हर नोड को एग्जैक्टली एक कलर देना है. एंड कोई भी कलर ऐसा ना हो जो कि किसी नोड को मिले ना. मतलब कि एग्जैक्टली एक नोड ऐसा मिनिमम एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको तीनों में से एक एक कलर मिला है, ठीक है. तीन कलर जो हमको दिए हुए हैं, दैट आर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है. नाउ लेट्स अज्यूम कि मान लेते हैं कि हमने इसको रेड कलर किया, इसको ब्लू कलर किया, मतलब इसको भी रेड कलर किया, इसको ग्रीन कलर किया एंड इसको ब्लू कलर किया, ठीक है. तो अब क्वेश्चन डिफाइंस ब्यूटी इन सच अ मैनर कि beauty is defined as sum of score of all the vertices. And what the score is defined as, स्कोर को उसने ऐसे डिफाइन किया है कि मान लेते हैं कि मैं अभी ये फर्स्ट वाले नोड के लिए अगर मैं स्कोर डिफाइन करूं, तो स्कोर विल बी कि जो भी कलर इस नोड को मिला हुआ है, दैट इज रेड हेयर, है ना. तो बाकी जो दो कलर्स हैं उससे इसका डिस्टेंस क्या है. लाइक ग्रीन से इसका डिस्टेंस 1 है एंड ब्लू से इसका डिस्टेंस 2 है. सम ऑफ these distances, like if I call it at D1 and I call it as D2, D1 plus D2 is defined as score for you, ठीक है. तो फर्स्ट अगर मैं इनको नोट्स को नंबर दे देते हैं, ठीक है. इफ आई नंबर दिस एज लाइक 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है. नोट्स को नंबर दे दिया. तो अगर मैं फर्स्ट नोट की बात करूं तो फर्स्ट नोट के लिए स्कोर क्या होगा, स्कोर वुड बी 1 + 2, दैट इज 3, है ना. अगर मैं सेकंड नोट के लिए बात करूं, सेकंड नोट के लिए दिस इज सेकंड नोट रेड कलर्ड है. तो green is at distance of 2 again, and 1 is at distance of, sorry, blue is at distance of 1. So again it is comes out to be 3. Similarly, तुम 3 and 4 के लिए भी बाकी जो दो कलर्स का डिस्टेंस है उनका सम इज गोइंग टू बी द स्कोर, ठीक है. तो एंड टोटल स्कोर ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इज गोइंग टू contribute to your beauty tree. If you have to like if you have to minimize the beauty, है ना. तो अब तुम, if you have to minimize the beauty, so what you can do is तुम किसी भी दो नोट्स को सेम कलर मत दो, ठीक है. कहने का मतलब ये है कि अगर तुम दो नोट्स को सेम कलर दोगे, इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू इंक्रीज द डिस्टेंस फॉर अनदर नोट, ठीक है. या फिर इसको ऐसे समझो कि मान लेते हैं कि लेट्स कंसिडर सम रैंडम ट्री, ठीक है. कंसिडर दिस इज माय ट्री.
पी के लिए मान लेते हैं कि मेरा ट्री है। तो अब मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अ, हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे लीफ नोड्स हैं, है ना, अगर हम लीफ नोड को सेम कलर दे देते हैं, लीफ नोड मतलब जो कि एग्जैक्टली जो एक नोड से कनेक्टेड है। सो इफ वी लाइक, अगर मैं फॉर एग्जांपल इन केस यहाँ पे रेड कलर देता हूँ, अगर मैं सारे लीफ नोड्स को एक कलर से दे देता हूँ, एक कलर ड्रॉप कर देता हूँ कि इफ आई कलर ऑल द लीफ नोड्स एज रेड, ठीक है, और उससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि हाँ, ऐसे कर देता है। अब मान लेते हैं कि अब जो बाकी जो बचे हुए नोट्स हैं, ठीक है, दोज आर माई इंटरनल नोट्स। अगर मैं इंटरनल नोट्स को ऑल्टरनेटिव मैनर में कलर करूँ, ठीक है, मतलब कि ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू इस तरीके से, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, अगर हम मैं मान लेता हूँ कि इसको मैं ब्लू कलर देता हूँ, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली इसको ग्रीन दूंगा, इसको ब्लू दूंगा, एंड इसको ग्रीन दूंगा, राइट। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो लीफ नोड है ना, लीफ नोड के क्लोजेस्ट, लीफ नोड से सबसे नजदीक वाला जो भी नोड जुड़ा हुआ है, या तो उस पे ब्लू होगा या उस पे ग्रीन होगा, ठीक है। तो ब्लू या ग्रीन जो भी होगा उसकी डिस्टेंस 1 हो जाएगी, राइट। और जो उससे जो जुड़ा हुआ जो ऑल्टरनेटिव नोड होगा, है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लीफ नोड रेड है, अगर वो जिस भी नोड से जुड़ा है, मान लेते हैं वो ब्लू था, तो ब्लू ब्लू आगे जिस भी नॉन लीफ नोड से जुड़ा हुआ है, किसी और इंटरनल नोड से वो जुड़ा हुआ है, उसका कलर ऑब्वियसली ग्रीन होगा, है ना, उसका कलर हैज टू बी ग्रीन, क्योंकि क्योंकि वी आर फिलिंग इन ऑल्टरनेटिव मैनर। तो इससे हुआ क्या, इससे हमने हर लीफ नोड के लिए लाइक वी हैव कैलकुलेटेड द मिनिमम डिस्टेंस हर लीफ नोड के लिए, एंड दैट इज 3, लाइक द मिनिमम स्कोर। क्योंकि लीफ नोड क्या होता है, लीफ नोड सिर्फ एक नोड से जुड़ा होता है, तो ऑब्वियसली अगर कोई भी कलर रख दो उस नोड पे, या तो ब्लू या तो ग्रीन, तो दैट इज गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट 1, है ना। और कोई और नोड जो कि क्लोजेस्ट होगा उस लीफ नोड के, दैट इज एट द डिस्टेंस 2। तो वी कैन लाइक इफ वी कलर अप इन दिस मैनर, जो मैंने तुमको बताया कि तुम सारे लीफ नोड्स को एक कलर कर दो और फिर ऑल्टरनेटिव ब्लू ग्रीन कर दो, तो दिस इज दैट कलरिंग जहाँ पे ये चीज हो रही है कि the node connected to the leaf node, just to the leaf node, that is going to contain contribute as distance 1, और जो जस्ट उसके बाद जुड़ा हुआ होगा वो उसके ऑल्टरनेट कलर में होगा, एंड दैट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट फॉर कलर 2, है ना, दैट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट अ डिस्टेंस ऑफ 2। दैट मीन्स कि हर लीफ नोड के लिए ब्यूटी में कंट्रीब्यूशन 3 जा रहा होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर तुम किसी इंटरनल नोड के लिए देखोगे, तो यू विल कम अप कि लेट्स से कि मैं इस नोड के लिए देख रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से कि इफ आई सी फॉर दिस नोड, तो ये खुद ग्रीन है ना। अगर ये खुद ग्रीन है, तो दैट मीन्स कि जो ब्लू वाला है वो इससे एक डिस्टेंस पे होगा, कि वो ऑल्टरनेटिव है ना। एंड ऑल्सो जो रेड वाला है वो भी इससे एक डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि हमेशा ऐसा होगा कि जो भी कलर तुम रखने वाले हो वो हमेशा किसी ना किसी लीफ नोड से जरूर जुड़ा होगा, राइट। क्योंकि जो रेड है दैट इज दैट इज कनेक्टेड टू सम नोड जो कि ग्रीन होगा, है ना। याद है जब मैंने अभी रिसेंटली ये बोला कि जब हम लीफ नोड्स को कलर रेड कर रहे थे, तो वो जिस भी नोड से जुड़ा है या तो वो ग्रीन है या तो वो ब्लू है ना। अगर वो ग्रीन हुआ तो ग्रीन के लिए रेड का डिस्टेंस 1 हो जाएगा, और ग्रीन किसी ना किसी ऑल्टरनेटिव ब्लू से जुड़ा हुआ होगा, उसका डिस्टेंस भी 1 हो जाएगा। दैट मीन्स कि फॉर अ ग्रीन नोड the contribution to the beauty is going to be 2। Similarly, अगर तुम ग्रीन की जगह ब्लू रखते तो ब्लू का डिस्टेंस ग्रीन से 1 हो जाता है एंड रेड से भी 1 हो जाता। सो दिस कम्स अप टू अ कंक्लूजन कि फॉर लीफ नोड, ठीक है, लाइक यू कैन क्लासिफाई योर नोड्स इनटू 2 कैटेगरीज, आइदर लीफ और नॉन लीफ, जिनको तुम लाइक इंटरनल नोड्स बोलते हो, है ना। तो लीफ is going to contribute a sum of 3 in your answer,
and internal nodes are going to contribute a sum of 2 in your answer. So the question now uh, like is now सा कि तुमको number of leaf nodes निकालने हैं and you can find your answer directly. So I hope this explanation is clear to you. Let's see the implementation of this. I expect you know how a tree is represented, right? So tree is represented via some adjacency list or adjacency matrix, you can say, a 2D vector basically. So if you have a prior knowledge to tree, I expect कि तुमको इतना आता होगा, ठीक है? So if I have taken the test cases input here and I have called the solve function and यहाँ पे क्या है कि I am taking the number of nodes, n is number of nodes and I'm taking this adjacency list. Okay, I'm initializing it with empty vector. Okay, and I'm taking the n minus one edges here. For each edge, like I'm taking two values u and v. So there's an edge between u and v. So I will construct my adjacency matrix. Okay, and for a leaf node, what is the condition for a leaf node? That if a node is a leaf node, then its neighbor, the count of neighbor is going to be exactly one. So that is I'm doing here key if adjacency of I dot size is exactly one, I'm counting the leaf nodes and non-leaf nodes are simply n minus 3. So my answer is going to be leaf into 3 plus non-leaf into 2. So that is my final answer and I'll simply print it. Okay. So I hope the code is not much tough, right? Only coming up with the intuition is like the thing. So I hope this much is clear. Okay. So let's take our last question now. This is going to be a last question. So the question says that you are given an array consisting of n non-negative integers, and you have to count the number of ordered quadruples I, j, k, and l such that I, j, k, and l such that they all are pairwise distinct. Okay, okay, and it is possible to form a rectangle ABCD such that AB is AIs or AJ, BG is AJs or AK, CD is AKs or AL, and DA is AL or AI. ठीक है ना? This is the thing. Up. The thing is कि you have to tell all the number of quadruples that you can form, right, from the array. So let's take this. Like you can stop me in between जहाँ पे तुमको नहीं समझ में आया, ठीक है? तो मान लेते हैं कि ये तुमको रेक्टेंगल दिया है, ठीक है? हमको ये पता है कि रेक्टेंगल की सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है? तो आई हैव टू फाइंड अ क्वाड्रुपल, मतलब अ ग्रुप ऑफ 4 नंबर्स, लाइक फॉर एग्जांपल आई, जे, के एंड एल, ठीक है? तो मान लेते हैं कि ये वो 4 नंबर्स हैं, आई, जे, के एंड एल, ठीक है? तो अब जो इसकी जो 4 साइड्स हैं वो ऐसे डिफाइंड है कि दिस इज लाइक एनीथिंग विजिबल टू यू, कुछ दिख रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. मतलब कोई ग्लिच है क्या या मुझे ही लग रहा है कि ग्लिच है? लैग कुछ है, लैग है थोड़ा, रुक रुक के चल रहा है। हम्म, एक सेकंड को मुझे गिव मी
डोंट नो व्हाई ये स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है। तो ठीक है, एनी हाउ लाइक वील कंटिन्यू, वी वोंट वेस्ट मच टाइम ऑन दिस। मैं नेक्स्ट टाइम से आई विल ट्राई टू लाइक फिक्स दिस एनी हाउ। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमको रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो इसकी चार साइड्स को वो ऐसे डिफाइन कर रहा है क्वेश्चन में कि मान लेते हैं चार वैल्यूज आई जे के एंड एल की, मतलब आई जे के एल अभी इंडाइसेस नहीं है, मान लेते हैं वो वैल्यूज है। ठीक है। तो यू कैन लाइक रिप्लेस देम, मतलब खुद से ये सोच सकते हो कि आई मतलब ए आई है। ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आई जे के एल एल एंड आई एम टेकिंग फोर वैल्यूज। ठीक है। तो फर्स्ट साइड इज डिफाइंड एज आई इज और जे, है ना। दिस इज डिफाइंड एज जे इज और के, एंड दिस इज डिफाइंड एज के इज और एल, एंड दिस इज डिफाइंड एज एल्स और आई। ठीक है। अगर मैं अ, आमने सामने वाली साइड्स को अगर इक्वेट कर दूं, ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, तो अगर ऐसा मैं करता हूँ तो दैट मीन्स कि आईज और जे हैज टू बी इक्वल टू केज और एल। ठीक है। दिस इज वन इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी जेज और के। ठीक है। और लेट मी राइट एज केज और जे, मतलब आई एम जस्ट स्वैपिंग द नंबर्स। केज और जे इज इक्वल्स टू आईज और एल, है ना। आईज और एल, तो मैंने लेंथ और ब्रेड्थ को इक्वेट कर दिया। ये कर सकता हूँ, राइट। दीज आर टू इक्वेशन, आईज और एल। ठीक है। Yes, sir. अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का जोड़ ले लूं ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, दोनों इक्वेशंस का अगर मैं जोड़ ले लेता हूँ तो व्हाट आई विल गेट नथिंग। जे से जे कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एंड मेरे पास वही इक्वेशन आ जाएगी कि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, लाइक आई इज और के इक्वल्स टू के इज और आई। इससे तो कुछ नहीं निकल रहा यानी का, लेकिन इसे एक इंट्यूशन जरूर निकलता है कि आईज और जेज और केज और एल अगर मैं सबका जोर कर दूं तो दैट हैज टू बी जीरो। वो कैसे निकलता है? वैसे निकलता है कि मतलब दिस इज सेइंग कि मतलब तुम इसको ऐसे देखो ना कि आईज और जे इज इक्वल्स टू केज और एल, मतलब कि अगर मैं आईज और जे एक वैल्यू है, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि Yes, आईज और K is जे, or K equal to K is or हाँ, keep together. आईज और जेज और केज और एल, ये जो चारों का अगर मैं जोड़ लूं, ठीक है, इसमें आईज और Yes, जे को ग्रुप कर लो, केज और एल को एक ग्रुप कर लो, तो इनसे दो वैल्यूज आएंगी और इन दोनों वैल्यूज को सेम होना पड़ेगा अगर एक रेक्टेंगल बनाना yes, है तो, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। और दो सेम वैल्यूज का जोड़ लोगे तो इट इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है। तो दिस मीन्स कि ये जीरो बनाने वाला है। तो ये बस कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन विद दीज ऑब्जर्वेशंस, हम क्या करते हैं कि अब तुम ऐसे सोचो कि अगर मैं तुमको ये बता दूं कि जो भी एरे हैं उन उस एरे में सारी पॉसिबल और वैल्यूज तुमको पता है। ठीक है। सारी पॉसिबल और वैल्यूज पता है, मतलब कि तुमको पता है कि टू एक और वैल्यू होगी, मतलब कुछ ना कुछ करके तुमको किसी दो नंबर का और तुमको टू दे रहा होगा। तो अगर मैं ये बोलूं ऐसे मेरे पास चार नंबर्स हैं, है ना, जिनको मैं ऐसे पेयर अप कर दूं दो दो का, तो वो मेरे को टू रिजल्ट करते हैं। मतलब कि दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका जॉट टू आता है और दो ऐसे और नंबर्स हैं जिनका भी जॉट टू आता है। तो क्या मैं उन चारों से एक क्वाड्रपल बना सकता हूँ? yes, sir.
ये चीज समझ आ रही है जो मैंने अभी समझाया कि उन चारों को जॉर यस। करो तो जीरो आएगा, है ना? अगर अगर मैं बची कहीं से जॉर बीच में। वैल्यू पे, हाँ, अगर मैं जॉर वैल्यू के पीओवी से देखता हूँ, है ना, तो इसका मतलब ये है कि मुझे बस यस। इतना सा देखना है कि सेम जॉर वैल्यूज कितनी है मेरे पास, है ना? क्योंकि मैं सेम जॉर वैल्यूज वालों को ही साथ रखूंगा। मतलब फाइंडिंग अ यस। क्वाड्रपल इज एज गुड एज फाइंडिंग अ पेयर ऑफ इक्वल जॉर यस। वैल्यूज, है ना? You can reduce the problem to finding a quadruple to finding a pair. That is much easier. And what you have to find a pair? ऐसा पेयर ढूंढना है तुमको कि जहां पे दोनों वैल्यूज इक्वल हो। What are the values? Values are the XOR values, है ना? तो यस। ये चीज समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? Is this thing clear or यस है not? तो Just आपने। tell me. यस। हाँ, ठीक है। तो ये मैंने समझाया अभी अभी कि आइज और जे और केज और एल। तो बेसिकली एक वैल्यू आइज और जे होगी और एक वैल्यू केज और एल होगी। अगर तुम आंसर में अगर ढूंढो, मतलब आंसर मतलब जॉर वैल्यूज में अगर ढूंढो, कोई भी दो इक्वल वैल्यूज मिल गई, तो तुम एक को आइज और जे से रिप्लेस कर सकते हो और एक को केज और एल से रिप्लेस कर सकते हो, है ना? एंड दैट इज गोइंग टू गिव योर आंसर। ठीक है। तो मूविंग ऑन विद दिस इंट्यूशन, अब तुम ऐसे सोचो कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक मैप है। ठीक है, आई हैव अ मैप, मतलब आई हैव बेसिकली अ फ्रीक्वेंसी एरे या बेसिकली काउंट। तो इफ आई मैप दिस थिंग है जिसका की टू वैल्यू जो है, की टू वैल्यू, तो की अगर मैं XOR वैल्यू को बना लूं, है ना, की अगर मेरी XOR वैल्यू हो जाएगी और वैल्यू इज गोइंग टू गिव मी द काउंट। ठीक है, कि मतलब ये वाली XOR वैल्यू कितने टाइम्स आ रही है। तो मान लेते हैं कि XOR वैल्यू थी ए, बी, सी। ठीक है, तो आई हैड दीज थ्री डिस्टिंक्ट XOR वैल्यूज, ए, बी एंड सी। और ए मेरा एक्स टाइम्स आ रहा था, बी वाई टाइम्स आ रहा था और सी जेड टाइम्स आ रहा था। ठीक है, रिमेंबर दीज आर द XOR वैल्यूज, नॉट द एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब मुझे सिर्फ इतना सा काम रह गया कि मुझे ऐसा पेयर बनाना है जिसमें कि वैल्यू सेम हो, राइट? मतलब रिजल्ट, जो रिजल्ट वैल्यूज जो भी XOR वैल्यूज है वो सेम हो। तो ऑब्वियसली व्हाट आई विल डू कि मैं सबसे पहले ए को देखूंगा। ए से मैं अपना आंसर जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। अगर ए का काउंट हैज टू बी एटलीस्ट टू, है ना? अगर वो दो से कम है तो कोई मतलब नहीं बनता ए को कंसिडर करने का। यस और नो? है ना, इट हैज टू बी एटलीस्ट टू। तो तुम ये देखो कि अगर मैं ए ए में से, लाइक देयर विल बी मल्टीपल टूज। मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू 5 थी, तो इसका मतलब क्या है कि 5 × 2 10, मतलब ये से 10 एलिमेंट्स होंगे जो कि 2 प्रोड्यूस कर रहे होंगे एंड दे ऑल विल बी पेयर वाइज डिस्टिंक्ट। ये चीज समझ पा रहे हो? सर एक बार रिपीट करिए, सॉरी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो, मतलब ये इतना समझ में आया कि ए बी सी आर XOR वैल्यूज एंड एक्स वाई जेड आर देयर काउंट। ये चीज समझ आ रही है? फ्रीक्वेंसीज, यस सर। हाँ। हाँ सर। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो A के लिए अगर हम बात करते हैं, अगर मुझे ए से अपना आंसर कंस्ट्रक्शन करना है, मतलब आंसर क्या है, मैं एक ऐसा पेयर ढूंढ रहा हूँ जिसकी दोनों वैल्यू सेम हो। और वैल्यू क्या हो सकती है ए के लिए, अगर मैं बोलूँ तो A, राइट? तो सर मैं एक ऐसा पेयर ढूंढना चाह रहा हूँ। हाँ बोलो। मतलब सर ए और ए तो मतलब वो तो उसके लिए फाइनल आंसर के लिए ढूंढ रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, तो ये ए बी सी XOR वैल्यूज ही तो हैं। यस सर। मतलब ए बी सी एलिमेंट्स नहीं है, ए बी सी XOR वैल्यूज हैं। यूजर। मतलब मेरे फाइनल एरे में तब जितने भी डिस्टिंक्ट पेयर्स बनेंगे, हाँ। है यस। ना, मैं सारे पेयर, हाँ। डिस्टिंक्ट पेयर्स का मैंने XOR निकाल लिया है। ठीक है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि मैंने उसका एक मैप बना लिया है। मतलब कि जो भी एक मैंने यस। फ्रीक्वेंसी मैप बना लिया है। तो एट, ये जो मेरी XOR वैल्यू है, मतलब कि ऐसे कितने पेयर्स रहे होंगे जिनको XOR करके अगर ए आएगा
ए कितनी बार आ रहा है ना, आई एम मेकिंग अ लाइक फ्रीक्वेंसी मैप फॉर द यस रिजल्ट वैल्यू। ठीक है, तो वो मैंने अगर कर लिया है तो मुझे बस काम इतना सा रह गया है कि मुझे अब बस एक पेयर ढूंढना है जिसमें दोनों वैल्यूज इक्वल हो, और बस मेरा काम खत्म। क्योंकि अगर मैं दोनों वैल्यूज को इक्वल कर दूंगा तो दैट इज गोइंग टू गिव मी अ क्वाड्रपल, ये जो देखिए। कि यस जिसकी जॉर वैल्यू जीरो होगी, राइट। यस तो मूविंग विद दिस, अब तुम इसको ऐसे देखो कि मान लेते हैं हम ए वैल्यू के लिए खोज रहे थे, ठीक है, ए वैल्यू के लिए हम ढूंढ रहे थे कि ऐसा एक पेयर बनाना है, तो ऑब्वियसली वो पेयर कैसे दिखेगा, वो ए कॉमा ए जैसा दिखेगा ना। यस अब क्योंकि इसमें वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, एरे में ये इजी वर्जन है, तो इसमें वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, तो पेयर वाइज मैंने डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही देखी हैं, एंड आई एम अज्यूमिंग कि डिस्टिंक्ट पेयर्स का जॉर ही कंसिडर किया है मैंने। दिस सिंपली मीन्स कि अगर टाइम्स ए आ रहा था, तो हर बार जो ए मुझे मिल रहा है एक्स टाइम्स, वो हर बार एक डिस्टिंक्ट पेयर से आ रहा होगा। ऐसा नहीं हो रहा होगा कि सेम पेयर से आ रहा है। ठीक है, यस अभी भी मतलब अंडरस्टैंडिंग दिस उसे थिंग इज वेरी क्रिएट। क्रिटिकल। हाँ, उसको मैं क्रिएट ही ऐसे यस करूंगा, दैट आई विल टेल यू कि वो कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, बट अज्यूम कि ऐसा मैंने क्रिएट कर यस लिया है, तो अब वो डिस्टिंक्ट पेयर से आ रहा है। मतलब कि अगर वहां पे तीन ए एग्जिस्ट करते हैं, तो एक ए के लिए एक अलग पेयर होगा, दूसरे ए के लिए अलग पेयर होगा, और तीसरे ए के लिए एक अलग पेयर होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यस मुझे तो ए से मतलब है, मुझे इससे मतलब नहीं है ना कौन सा पेयर रखा गया है, राइट। तो अगर तुम इसको ऐसे सोचो कि अब मेरा काम बस इतना सा रह गया कि टोटल नंबर ऑफ ए जितने भी अवेलेबल है उसमें से मुझे एग्जैक्टली exactly दो ए चूज करने हैं, राइट। यस दैट इज नथिंग बट XC2, क्वाड्रपल बना। है ना, यस एंड D के लिए इट इज गोइंग टू बी YC2, एंड T के लिए इट इज गोइंग टू बी ZC2, सो ऑन। ठीक है, तो अब अगर मैं लाइक इन सब का सम कर दूं, ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू हैव इज, आई एम गोइंग टू हैव these many number of pairs। टोटल नंबर ऑफ ठीक है, क्वाड्रपल। यस ठीक है, अब ये अभी मेरे पास ये टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आए हैं। ठीक है, बट देर इज वन मोर थिंग है। अब इसमें एक चीज और क्या है, एक चीज और ये है कि मान लेते हैं कि एक, मान लेते हैं कि कोई भी इसमें जो मेरा आई कॉमा जे कॉमा के कॉमा एल, आई जे के एल, मान लो कि ये मेरा एक वैलिड क्वाड्रपल है। ठीक है, आई कॉमा जे कॉमा के कॉमा एल अगर मेरा एक वैलिड क्वाड्रपल है, तो इसमें आई कॉमा जे सेम वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, जो कि के और एल कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, मतलब कि आईज और जे और केज और एल बराबर होंगे, है ना, अगर ये वैलिड है। तो यस इसका मतलब अब क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि तुम इनके परम्यूटेशंस को भी अकाउंट में लो, है ना, क्योंकि अगर ये क्वाड्रपल है तो इसको हम रीअरेंज भी तो कर सकते हैं, यस क्योंकि दीज आर नथिंग बट इंडाइसेस। ये आई जे के एल जो है ये यस ए आई ए जे ए के एंड ए एल है। तो अगर तुम ए आई और ए फोर। जे को पिक कर रहे हो, तुम ए जे और ए आई को भी पिक कर सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन उसको भी अकाउंट में लेने यस को कह रहा है, सो व्हाट वी विल डू कि हमने डिस्टिंक्ट पेयर्स पहले काउंट कर लिए, अब उसको पेयर से क्वाड्रपल में कन्वर्ट करने के लिए तुम क्या कर सकते थे, अगर नॉर्मली अगर वो पेयर होता तो तुम सिर्फ पेयर्स को रीअरेंज कर सकते थे, है ना। अगर वो ए कॉमा ए जैसा दिखता तो तुम पहले ए और दूसरे ए को स्वैप कर सकते थे, तो टोटल आंसर में तुम टू मल्टीप्लाई करते, राइट। यस बट अब यहाँ पे वो एक्चुअली में क्वाड्रपल रहा होगा, तो एक टू तो इस वजह से आएगा कि तुम उन पेयर्स को स्वैप कर सकते हो, मतलब आई कॉमा जे और के कॉमा एल को स्वैप कर सकते हो, और आपस में आई और जे को भी स्वैप कर सकते हो, मतलब आई कॉमा जे इज एज गुड एज जे कॉमा आई। एक टू इसकी वजह से आएगा, और एक और टू इसकी वजह से आएगा कि तुम के कॉमा एल को भी स्वैप कर सकते हो। इट इज गोइंग टू बी अल्टीमेटली टू इंटू टू इंटू टू,
है ना, मतलब कि यस 8 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ पेयर जो भी तुमने निकाला था अब तक, उसमें तुम 8 मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू योर फाइनल आंसर। क्योंकि हमको लाइक परम्यूटेशन भी कंसिडर करना है उसका, है ना, द ऑर्डर मैटर्स। तो ये चीज समझ आ रही है ना कि हम 8 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लाइक 1 2 फॉर हर स्वैपिंग द पेयर्स, और फिर उन दोनों को भी एंड स्वैप कर सकते हैं। इंटरनली उन दोनों को स्वैप करने के लिए 2 मोर टूस, है ना। तो यस दैट इज इट फाइनली। तो अब हमको बस ये देखना है कि वो मैप कैसे बन रहा था। वो मैप ऐसे बनेगा, दैट इज नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड, है ना। आई टेल यू दिस, मान लेते हैं कि ये तुम्हारी एक एरे थी। तो अगर तुम ऐसा करो कि फॉर एवरी इंडेक्स आई, अगर तुम आई का पेयर सिर्फ उसके आगे आने वाले एलिमेंट्स के साथ करो, तो हर बार आई का जैसे एग्जैक्टली एक ही पेयर बनेगा, है ना। यस मतलब ऐसा नहीं होगा कि आई 2 बार चूज किया जा रहा होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर तुमको किसी भी एरे में पेयरिंग करनी है तो दो दो तरीके होते हैं। या तो तुमको अगर जैसे पेयर्स को रिपीट कराना है तो तुम क्या कर सकते हो, किसी भी इंडेक्स को उठाओ और उसको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारे एलिमेंट्स के यस साथ पेयर अप कर दो, है ना। बट यस तुमको यहाँ पे मैं कौन से केसेस हटा रहा हूँ, मैं वो केसेस हटा रहा हूँ जहाँ पे वो खुद के साथ पेयर अप नहीं हो रहा और आई कॉमा जे और जे कॉमा आई 2 बार काउंट नहीं हो रहा है। यस उसके लिए तुमको क्या करना है, तुमको बस इतना सा करना है कि जिस भी करंट इंडेक्स पे तुम हो, उस करंट इंडेक्स को उन सब नंबर्स के आगे साथ पेयर अप करना है जो कि उसके बाद आते हैं, राइट। यस एग्जैक्टली एक बार पेयर बनेगा और हर पेयर डिस्टिंक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, है ना। यस तो आई होप दिस लॉजिक इज क्लियर। तो दिस साउंड कन्विंसिंग, राइट। यस लेट्स सी द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो सी द टेस्ट केसेस आर लाइक क्वाइट kept tight here, तो कोशिश यही करना कि तुम इंट और लॉन्ग का बहुत ध्यान रखो। लाइक इट टुक मी अराउंड काउंटलेस नंबर ऑफ सबमिशंस एंड ऑलमोस्ट 35 मिनट्स टू सबमिट दिस थिंग। मतलब मैं 35 मिनट्स तक कंटिन्यूअसली ये आफ्टर सॉल्यूशन सबमिट सॉल्विंग करता रहा आफ्टर सॉल्विंग। आई हैड दिस लॉजिक, मतलब मैंने इसको लाइक 9 9 PM पे आई हैड द करेक्ट सॉल्यूशन and like I got an AC on 9:35. So it took me like almost 35 minutes. And this is just because कि जो constraints थे वो थोड़े टाइट है यहाँ पे, है ना। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोडशेफ का जो क्या कहते हैं, जो सर्वर है, डज नॉट टेक फॉर द सेम सॉल्यूशन। हो सकता है कि सेम सॉल्यूशन तुम्हारा एक्सेप्ट हुआ हो और सेम सॉल्यूशन केएल ही देते। ये तो देयर आर वेरी माइन्यूट थिंग्स, मतलब यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो सी दिस सॉल्यूशन इज कि I'm taking the test cases first of all, ठीक है, and the यस size of the array and the input here, ठीक है। तो if I take this input, तो I am using an unordered map here. Remember यहाँ पे unordered map लेना, क्योंकि ordered map is going to give you a TLE. साइंस तो हाँ, तो I am taking a frequency map here and I'm naming it as Zor count, ठीक है। And यस then what I'm doing is I'm constructing the frequency map. तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर इंडेक्स के लिए फॉर आई 0 to लेस देन n-1, व्हाट आई विल डू, मैं j को स्टार्ट करूंगा i+1 से, एक आगे वाले से, और मैं बाकी i के लिए उन सब आगे आने वाले हर j के साथ एक पेयर बनाऊंगा, ठीक है। एंड आई विल स्टोर दिस ai's और aj इन माई मैप एंड आई विल डू एन इंक्रीमेंट फॉर एवरी दिस वैल्यू, ठीक है। दिस इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट माई मैप, है ना। अब एज सुन एज आई हैव माई मैप, व्हाट आई कैन डू, अब कुछ नहीं बचता, बस इतना सा बचता है कि यू हैव टू डू C2, जो कि हम कह रहे थे कि यू इनिशियलाइज योर आंसर विद 0 एंड यू आइटरेट ओवर दिस मैप एंड दिस इज योर सेकंड पार्ट इज योर वैल्यू, राइट, वैल्यू इज काउंट।
तो दिस इज योर काउंट, एंड इफ योर काउंट इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स कि एटलीस्ट 2 होना चाहिए, ऑब्वियसली एटलीस्ट 2 होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू योर आंसर कि काउंट इनटू काउंट माइनस 1 बाय 2 1, दैट दिस इज लाइक काउंट C2, राइट, काउंट C2। तो इतना तुम अपने आंसर में जोड़ लोगे। दिस इज गोइंग टू गिव यू टोटल नंबर ऑफ सच पेयर्स, जो कि हमने क्वाड्रपल से हमने पेयर में डिड्यूस किया था। दिस इज गोइंग टू गिव यू योर पेयर्स, ठीक है। एंड फाइनली अगर तुम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो एज एक्सप्लेन, दिस इज गोइंग टू गिव यू योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो सबमिटेड दिस, कि अभी देखो ये टीएलई दे रहा है, दिस इज अ लाइव प्रूफ, देखो अभी ये टीएलई दे रहा है इस टेस्ट केस पे, एंड ये इसी टेस्ट केस पे मुझे आधे घंटे तक टीएलई देता रहा, जबकि ये एक एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है ना। लाइक यू कैन सी इन माय सबमिशंस कि यस। ये जो मेरा मैंने लास्ट देखा कि एक्सेप्टेड बहुत बार सॉल्यूशन है, पेज, हाँ, इसी सॉल्यूशन को दोबारा सबमिट एक दो करने पे पेज ये पर फिर से टीएलई दे रहा है। सो दिस इज लाइक वेरी हार्श, आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस। है ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस डिस्कशन, ठीक है। थैंक यू गाइस।